Good morning, student. Welcome to my online classes of Rashmi ma'am. Today I am going to start our biology. Chapter was your transpiration. Next topic, stomatal regulation of transpiration. Now in this we have to study about the stomata, which is a very minute pore found in the upper layer of the lips. So on lips, so in this chapter, or you can say in this topic, we have to understand about the stomatal regulation, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू जो रेगुलेशन होता है ट्रांसपीरेशन में. रेगुलेशन मीन्स क्या? मूविंग इन एंड आउट. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. स्टोमाटा आर माइन्यूट स्ट्रक्चर अकरिंग इन लार्ज नंबर्स ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. एपिडर्मिस मतलब क्या हो गया? सरफेस. तो स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विथ एन अपर्चर इन बिटवीन. अपर्चर मतलब ओपनिंग. इन बिटवीन उनके पास दो गार्ड सेल होते हैं और दोनों बीन शेप में होते हैं और बीच में अपर्चर यानी कि माइन्यूट ओपनिंग होता है. इट रिपेंड्स ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इज क्लोज्ड एट नाइट. दिन में ये खुले रहते हैं और रात को ये बंद हो जाते हैं. The reason for the opening and closing of this structure is the turgidity of guard cells. और इसके खुलने और बंद होने के पीछे है turgidity of guard cells. Now on the lower epidermis of a leaf, transpiration occurs as long as the stomata are open. Transpiration उतनी ही देर अकर होगा जितनी देर ये स्टोमाटा खुले रहते हैं. बट इट स्टॉप्स व्हेन दे आर क्लोज. लेकिन ये बंद हो जाता है, उसी समय ट्रांसपीरेशन बंद हो जाता है जैसे ही ये स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं. सो ये खुलने और बंद होने के मेकेनिज्म को और रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द गार्ड सेल. और ये किसी भी स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस चीज़ से रेगुलेट होता है? अमाउंट ऑफ वाटर. यानी कि पौधे जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्यूट्स एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा इनका खुलना से ट्रांसपीरेशन का रेगुलेशन होता है. यानी कि जितना ज़्यादा ये खुलेंगे और बंद होंगे उतना ज़्यादा रेगुलेशन इनके थ्रू होता है. As the stomata open during the daytime, the diffusion of gases in and out starts, fulfilling the need for photosynthesis as well, allowing the transpiration. यही नहीं, the thing is not only that a stomata allows the water and the solutes to move on, but also when stomata open during the daytime, it diffuses the gases in and out, which fulfill the need for the photosynthesis of the plants. इनके थ्रू सिर्फ यही नहीं होता है, खाना सॉल्यूट्स और पानी का ही इन एंड आउट नहीं होता है, बल्कि गैसेस का भी होता है जो कि किसी भी पौधे के फोटोसिंथेसिस को फुलफिल करता है. As well, allowing transpiration. If any reason the water content of the leaf is falling short, the guard cell fail to remain turgid. Rather, they turn flaccid, lose turgidity, thereby closing the stomatal opening and transpiration stops. A more detailed amount of closing and opening mechanism of the stomata is given in the next chapter, which we will move on to read in a flow. So, the interior wall of the guard cells present towards the aperture is dense and flexible. जो भी इंटीरियर वॉल होते हैं गार्ड सेल्स के प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर्चर, यानी कि उस पोर के पास वो बहुत ही घने और फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ईजिली मूवेबल होते हैं. द स्टोमाटा व्हेन ओपन व्हेन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेज. जैसे ही उस गार्ड सेल्स में पानी बहुत ज़्यादा जैसे स्टोर होने लगेगा, स्टोमाटा क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं. द एक्सटीरियर वॉल्स ब्लग आउट एंड द इंटीरियर वॉल्स फॉर्म अ क्रिस्टेंट शेप. Forms a crescent shape. The orientation in the microfibrils in the guard cells also plays an important role in the opening of the stomata. Microfibrils जो कि गार्ड सेल में पाए जाते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किस चीज़ में? ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. The radial orientation of the microfibrils makes it easier for the stomata to open. The stomata close when the turgidity of the guard cell decreases due to the water loss, and the interior walls form a crescent shape, retrieve their original shape. The dicots, the lower side of leaves, have more stomata, while in monocots, both the sides have an equal number of stomata. हमें पता होना चाहिए कि जो डाइकॉट्स होते हैं
और जो भी होते हैं लोअर साइड ऑफ लीव्स हैव मोर स्टोमाटा वाइल इन मोनोकॉट्स बोथ द साइड्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा। डाइकॉट्स में स्टोमाटा ज़्यादा होते हैं बशर्ते मोनोकॉट्स में, बिकॉज हमें पता है कि डाइकॉट्स मीन्स 2 एंड मोनोकॉट्स मीन्स 1। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉट्स ही जब इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टोमाटा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा हमें मिलते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग। क्या होते हैं लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स, दिन भर में उनका जितना भी लॉस होता है वो शाम को वो क्या करते हैं, सारा रिकवर कर लेते हैं। जैसे बाल्सम, the leaves of the plant wilt during the midday in spite of fact there is a plenty of water in the soil. In such cases, the rate of transpiration during midday exceeds the rate of absorption of water by the roots. और जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन इनका होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाता है। और साथ ही साथ सेल्स क्या होते हैं, अपनी टर्जिटी लूज़ कर देते हैं। इवनिंग और ड्यूरिंग नाइट द स्टोमाटा आर कंसिस्टेंट एंड टेम्परेचर इज़ नॉट हाई। We all know that in the midday or in the morning time temperature would rise as the sun will move on, and in the night there is no sun, that's why the temperature is decrease. तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जो लॉस ऑफ वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू कम हो जाएगा, द टर्जिटी ऑफ द लीव इज़ रिक्वायर्ड एंड दे स्टैंड आउट इरेक्ट। और इस तरह से जो टर्जिटी है लीव्स की वो क्या हो जाती है और रिक्वायर्ड हो जाती है और स्टैंड आउट हो जाती है। सो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी कह सकते हैं स्टोमाटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, cuticle is a waxy, it is the evaporation of water from the cuticle of plants. The cuticle is a waxy covering on the surface of the leaves of the plants. About 5 to 10% of the water from the leaves is lost through cuticular transpiration. During dry condition, when the stomata are closed, more water is transpired through the cuticles. क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो भी इवापोरेशन ऑफ वाटर क्यूटिकल से होता है, और क्यूटिकल जो होते हैं बहुत ही वैक्सी लेयर्ड होते हैं, कवरिंग सरफेस किसके, लीव्स के, जहाँ से सिर्फ 5 to 10% ऑफ वाटर ही क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं थ्रू क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन व्हेन द स्टोमाटा आर क्लोज, मोर वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू द क्यूटिकल्स। लेंटिकुलर्स क्या हो गए, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो है लेंटिकल से होते हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं, कहाँ पे, छाल, ब्रांचेस के, टहनियों के छाल और ट्विग्स के ऊपर। इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है लेंटिकल्स से जो निकलते हैं उसे ही लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और ये लेंटिकल्स हर एक प्लांट में नहीं होता है। डेट्स वाई इससे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिकल्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फैक्टर्स affecting transpiration. Factors affecting transpiration. Now what should be the factors? There are different factors affecting the rate of transpiration are cellular factors, environmental factors, relative humidity, temperature, light, air, water availability, surface area of the leaves and scent of sap. So the first one is our cellular factors. अब इन cellular factors में क्या आता है, the orientation of leaf, या हम कह सकते हैं हमारे leaves के shape and size, the water status of the plant, plants में पानी की कैसा मात्रा है, ज़्यादा है या कम है, structural peculiarities of the leaf, leaves के structure के ऊपर डिपेंड करता है, total number and distribution of stomata in a leaf. Cellular factors में पहला आ जाता है आपका प्लांट में वाटर का स्टेटस, लीफ का स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ स्टोमाटा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, लीफ के ऊपर. नेक्स्ट कम्स योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. The environmental factors affecting the rate of transpiration, that is light, humidity, temperature, atmospheric pressure, wind speed or velocity,
तो लाइट, ह्यूमिडिटी यानी कि रोशनी, ह्यूमिडिटी आप समझ सकते हो, ह्यूमिड नेचर, टेम्परेचर और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड स्पीड और वेलोसिटी, ये सब कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? हमारे ट्रांसपिरेशन को। सो फर्स्ट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, the amount of water vapor present in the air at a particular time and temperature is expressed as a percentage of the amount required for saturation at the same temperature. The rate of transpiration is inversely proportional to relative humidity. More the relative humidity, less is the transpiration rate. जितना ज़्यादा relative humidity बढ़ेगा उतना ही कम हमारा transpiration होगा, क्योंकि जो वाटर वेपर हमारे इस इन्वायरमेंट में, एयर में एक पार्टिकुलर टाइम में होता है, टेम्परेचर उसी को एक्सपोज करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो जितना हमारे रेट में ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा, और जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटेगा। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर lowers the relative humidity and opens the stomata even in darkness. जितना ज़्यादा, मान लीजिए अगर रात में भी आपकी ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रात को भी एट द नाइट ऑल्सो स्टोमाटा ओपन, और वहाँ पे भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा और साथ ही साथ हमारा ट्रांसपिरेशन अकर होगा। लाइट के बारे में जानती ही हैं कि स्टोमाटा ड्यूरिंग डे टाइम खुला रहता है और रात को बंद। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ transpiration. Air, if there is still the transpiration rate is low, this is because the water vapor accumulates around the transpiring organs and reduce the diffusion pressure defect of the air. If the air is moving, the saturated air around the leaves is removed and the transpiration rate increases. अब हमारे इस environment में अभी भी air है, तो जैसे जैसे transpiration rate low होता जाएगा, water vapor accumulates होगा और transpiring organ and reduce the diffusion pressure defect of the air. The air is moving, the saturated air around the leaf is removed, the transpiration rate increases. जैसे ही हमारा एयर एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा, यानी कि ना तो ज़्यादा ना तो कम, अगर एक सैचुरेटेड लेवल पे आएगा वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रांसपिरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। कहाँ से? बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अ डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन, क्लोज ऑफ स्टोमाटा, और increase of water absorption, open of the stomata, thereby reducing the rate of transpiration. The leaf having more surface area will show more transpiration rate within than the leaf with a lesser surface area. जितना ज़्यादा surface area leaf का बड़ा होगा उतना ज़्यादा rate of transpiration बढ़ेगा, और अगर कम होगा तो कम हो जाएगा। Velocity of wind, transpiration increase the velocity of the wind. जितना ज़्यादा तेज़ हवा बहेगी और हवा जितना ज़्यादा फास्टर होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज होगा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और हमारा ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर, मोर रिमूवल ऑफ कॉजेज स्टोमाटा क्लोजर एंड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन। जितना ज़्यादा हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टोमाटा क्लोज होगा और हमारा ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। Rate of transpiration increases with the decrease in atmospheric pressure, thus enhances diffusion of water vapor. हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है, यही वजह है कि वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर बढ़ जाता है। तो ये सब थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन। Now in next video I will move towards our internal factor and I will complete this chapter. So till this, thank you student.